Great morning, student. Today we have to start a unit 3rd, session 7. The chapter name is Introduction to ICT. The meaning of ICT: Information Communication Technology. Let's start the chapter. Technological development has revolutionized in our life of a great extent. It has to led the emergence of a new global economy. Technology has virtually transformed the world into a global village. Nobody with the click of a button you can find any information you want. जो टेक्निकल डेवलपमेंट हमने हमारी जो डेली लाइफ में जो क्रांति ला दी है, हमारे जो पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है. इन दिनों हम एक क्लिक से कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं भी और किसी भी समय हम प्राप्त कर सकते हैं. नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ICT इज एन एक्रोनियम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. जो ICT है एक्रोनियम है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का. इट रेफर्स टू ऑल डिवाइस नेटवर्किंग कंपोनेंट्स एप्लीकेशन एंड ICT comprises the all communication technologies such as the internet, mobile phone, satellite, transmission, wireless network. ICT में सारे जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वो आती है, जैसे कि इंटरनेट हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, सैटेलाइट हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, वायरलेस नेटवर्किंग हो गया. नेक्स्ट है रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ICT. Every aspect of our daily routine has altered with the advent of ICT. It helps to improve the quality of our life. इसने हमारी लाइफ को क्या कर दिया है, इम्प्रूव कर दिया है. By giving us easy access to information as well as a large number of a product and services. कैसे इजी किया है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स दे के, बहुत सारी इजी इंफॉर्मेशन दे के, बहुत सारी सर्विसेज दे के हमारी लाइफ को इजी कर दिया है. ICT हैज़ ट्रांसफॉर्म द वे वी लिव, द वे वी वर्क, द वे वी कंडक्ट बिजनेस एंड द वे वी कम्युनिकेट विद ईच अदर. ICT ने हमारी सारी लाइफ को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है. हमारा जीने का तरीका, हमारा बिजनेस करने का तरीका, कम्युनिकेशन करने का तरीका, सबको क्या किया है, इसने प्रभावित किया है. ICT in workplace. The World Wide Web has made it possible to search for information on varied issues such as education, health and nutrition, current affairs, social aspect, finance, and many other important issues with help to improve our life. ICT is very helpful to workplace that use to robots and artificial intelligence of our manufacturing products. जो ICT से इसने हमारी लाइफ को बहुत ही ईजी बना दिया, बहुत ही ईजी और सुविधाजनक बना दिया. जैसे कि हमें एजुकेशन के फील्ड में हमें बहुत सारे हम इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, हेल्थ, न्यूट्रिशन, करंट अफेयर, हम बहुत सारी जानकारी हम सोशल नेटवर्किंग के थ्रू हम प्राप्त कर सकते हैं या हमें मिलती है. ICT इज यूज इन मैनी वर्क प्लेस लाइक एज. ICT बहुत सारे वर्क प्लेस में यूज होती है, लाइक एज द मीनिंग इन इंडस्ट्री ऑफ अ प्रोस्पेक्टिंग, देन ऑटो इंडस्ट्री, aerospace, space industry, and for search, design, engineering, and the manufacturing, assembling, as well as the fault diagnosis and the safety test and the simulation. The power plant of power generation and distribution. The telecommunication industry for a building and maintaining network. Finance agency have access to a large amount of information about the companion market all over the world, which helps them to analyze about the predict future trends. Then next है education. ICT in education. ICT can be effectively used to develop content and conduct
classroom training through video, expert lectures and other such tools. ITs के यूज़ से हम अपने क्लासरूम को इफेक्टिव बना सकते हैं, जैसे हम ट्रेनिंग, वीडियोस, लेक्चर्स, अदर सच टूल्स, टीवी चैनल्स, वेबसाइट्स, ऐप यूज़ करके यूज़ ICTS सर्विस टू क्रिएट द ट्रांसमिट एजुकेशनल कंटेंट एंड प्रोवाइड। तो हमें बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट इससे हमें मिल। ICT in health care. ICT is used to pharmaceutical sector for a cutting edge research and the manufacturing. It helps to hospital managing the administration and also help the doctor and nurses to diagnose, treat and monitoring the patient. One can search for a learning about the various diseases, their symptom, cause and the precautionary measures on a internet. ICT हेल्थ केयर में भी बहुत यूज़फुल है, जिससे बहुत सारे सेक्टर्स में यूज़ किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हॉस्पिटल में मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल्सो हेल्थ। ये बहुत सारी हेल्प करती है डॉक्टरों की पेशेंट को डायग्नोज करने में, ट्रीट करने में, कोई पेशेंट को मॉनिटर करने में। ये ICT हेल्पफुल है। नेक्स्ट है ICT इन गवर्नेंस। ICT in governance. Digital India made a e-governance of the जो ITC ऐसा ये गवर्नेंस में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, जैसे बहुत सारे टैक्स को कलेक्ट करना, बहुत सारे लाइसेंस को रिन्यू करना, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, टैक्स पेमेंट करना, LPG सिलेंडर, ये सारे बहुत सारे काम हैं जो हम इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। पेइंग फॉर आ वाटर एंड बिल्स, हम इसके थ्रू वाटर बिल, बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स या बहुत सारे हम काम इसके थ्रू कर सकते हैं। ICT इन बिजनेस। ICT बिजनेस में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस में कैसे हेल्पफुल है। ICT फैसिलिटी e-commerce which includes the marketing. इसमें मार्केटिंग इंक्लूड होती है, प्रोडक्ट्स, ब्राउजर, शॉपिंग, प्रोसेसिंग एंड ऑर्डर, बिजनेस कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, एज ए मोबाइल मार्केटिंग और अ प्रोडक्ट्स एंड अनदर मेजर यूज ऑफ ITC बिजनेस। बहुत सारे मेजर यूज हैं जो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन। अब मोबाइल फ़ोन हेल्प अस इन अ कम्युनिकेशन इन बोथ बाय वॉइस एंड टेक्स्ट मोड। मोबाइल फ़ोन है जो हमें टेक्स्ट मैसेज और वॉइस दोनों ही मोड हमें अवेलेबल कराता है। इट ऑल्सो हेल्प अस टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट बनाने में हमारी मदद करता है। मेक अ प्रेजेंटेशन, कलेक्ट द डाटा, डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन। मोबाइल फ़ोन आर यूज टू सर्फ द इंटरनेट टू get the information on any topic in very short span and the time। जो मोबाइल फ़ोन है हमें नेट सर्फिंग में हेल्प करता है, बहुत सारे टॉपिक में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। थ्रू द मोबाइल फ़ोन स्टूडेंट कैन एक्सेस द वेरियस एजुकेशनल वीडियो ऑनलाइन। इसके थ्रू स्टूडेंट बहुत सारी एजुकेशनल वीडियो देख सकते हैं ऑनलाइन। पार्टिसिपेट द ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टैबलेट अनडाउटली द एग्जिटिंग एंड द न्यू वे टू इंटरेक्ट विद टेक्नोलॉजी। टैबलेट एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो इंटरेक्ट करती है। दे आर टच स्क्रीन एनेबल स्मॉल कंप्यूटर। ये इस टैबलेट की स्मॉल स्क्रीन स्मॉल कंप्यूटर की तरह दिखता है। इसमें इसको ईजिली हैंडल किया जाता है। टैबलेट आर मोस्टली यूज फॉर डाउनलोडिंग एंड एक्सेसिंग द एजुकेशनल एप्स। टैबलेट मोस्टली यूज होता है एजुकेशनल ऐप को एक्सेस करने के लिए, वॉचिंग मूवी, प्लेइंग गेम्स एंड कनेक्टिंग विद पीपल ऑन सोशल मीडिया। इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स एंड इंटरेक्टिव जो वाइट बोर्ड होते हैं, जो ये इंटरेक्टिव वाइट होते हैं, ये मेनली कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं। कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं और हम इसकी डिस्प्ले पे हम कुछ भी नोट डाउन कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, जो हम क्लासरूम की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। एजुकेटर टू राइट होना, इम्प्रूव द प्रेजेंटेशन। जो हम प्रेजेंटेशन बनाएंगे इस पर हम इजीली शो कर सकते हैं।
Then last is email. Email is a short for electronic mails. Similar to a letter, एक लेटर की तरह होता है. It's sent by internet. ये इंटरनेट के थ्रू सेंड किया जाता है. एंड ईमेल एड्रेस रिक्वायर. इसमें हमें दो पर्सन, एक सेंडर और एक रिसीवर. सेंडर क्या है, वो सेंड करता है, और रिसीवर क्या है, उसको रिसीव करता है. व्हेन कंपेयर द ट्रेडिशनल पोस्ट ईमेल, और इससे हम जो पहले वाला पोस्टल, जैसे हम पोस्ट ऑफिस प्रीवियस टाइम में, जो मोस्टली जब हम पुराने समय में हम लेटर को हमें सेंड करना होता, तो हम पोस्ट ऑफिस जाके लेटर लिखते थे, उस पर सेंडर और रिसीवर का एड्रेस लिखते. सेम उसी तरह इसको ईमेल है. ईमेल में हम क्या करते हैं, सेंडर जिसे हमें सेंड करना है उसका एड्रेस, और जो हमने टॉपिक लिखा है, उस टॉपिक है जो भी हम मैसेज टाइप करना चाहते हैं उसको टाइप करके हम इसको सेंड करते हैं. लेकिन लेटर, जो पुराने समय में जो लेटर था वो क्या था, बहुत टाइम लगाता था. लेकिन ईमेल क्या है, विद इन अ फ्यू सेकेंड क्या है, दूसरे पर्सन को डिलीवर हो जाती है. An email address is required to send a receiver email, and that address unique to user. When compared to the traditional post email, then delivered to extremely fast from one computer to another computer. It can be sent and received from any computer anywhere in the world. ये कहीं भी और कभी भी हम ईमेल को सेंड कर सकते हैं. That has internet connection. Email has a extremely useful ICT tools that can be used for giving instructions, serving and documentation, provide the confirmation and communications rules and producers, making a recommendations and provides a status update. It can also be utilized as a tool for facilitating learning through the internet. Educational environment, email can use to facilitate to transmit such as needed course related to a communication and student that they are all access to the same information. I hope you understand this chapter. Thank you. Have a nice day.